گے. اچھا آپ کہیں گے, آپ سوچیں گے کہ یار گناہ سے بچنے کی بات ہو رہی ہے تو انسان تو آخر گناہ کر ہی بیٹھتا ہے, پھر اس کا علاج کیا ہے؟ فرمایا گیا گناہ مت کرو, اور گناہ کرو مت, اور اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لو. گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لو. گناہ ہو جانے پہ فوراً توبہ ایسے ہی ہے جیسے کپڑے پر سالن کا داغ لگ جائے اور آپ فوراً دھل لیں تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ داغ کب لگا تھا. لیکن مجھے حیرت ہے کہ وہ جائز سالن, وہ جائز چائے, اگر سفید کپڑے پہ تھوڑا سا دھبا لگ جائے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے, اور دل پر کروڑوں گناہوں کے دھبے لگے تو انسان بے چین نہیں ہوتا. کپڑوں کو صاف کرنے کا اتنا خیال ہے, لیکن دل کو خیال کرنے کا, دل کو صاف کرنے کا کیا خیال ہے؟ دل کی تطہیر کے لیے کیا سامان ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, وقت زیادہ نہیں, بس اپنی گفتگو اب سمیٹ لوں, اس لیے کہ غروب آفتاب کا وقت ہو رہا ہے. اگر دنیا کی مکمل لذت چاہتے ہو, دنیا میں یقیناً انجوائے کرنا چاہتے ہو, دنیا کی ہر نعمت کو یوز کرنا چاہتے ہو, دنیا کے اندر عزت کے ساتھ جینا چاہتے ہو, دنیا کے اندر وقار کے ساتھ جینا چاہتے ہو, ہمیشہ خوش رہنا چاہتے ہو, ہمیشہ پرسکون رہنا چاہتے ہو, ہمیشہ تبسم ریز رہنا چاہتے ہو, ہمیشہ مسکراتے رہنا چاہتے ہو, ہمیشہ دوستوں سے محبتوں کا خراج وصول کرنا چاہتے ہو, ہمیشہ کی سرداری چاہتے ہو, ہمیشہ کی قیادت چاہتے ہو, ہمیشہ کی امامت چاہتے ہو, ہمیشہ کی نعمت چاہتے ہو, لازوال عزتیں اور نعمتیں چاہتے ہو, تو گناہوں سے رشتے کو توڑ لو. اور اگر کبھی گناہ ہو جائے تو فوراً رب کی بارگاہ میں توبہ کرو, فوراً رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ, فوراً رب کی بارگاہ میں آنسو بہاؤ, اس لیے کہ میرے اللہ کا فرمان ہے جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ ایسے گناہ سے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. اس لیے انسان اگر سچی توبہ کرے تو میرا اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے, میرا رب اس کو معاف کر دیتا ہے. آؤ آؤ, آج سے پہلے ہم سے چاہے جو کچھ ہوا ہو, آج سے پہلے ہم نے چاہے جو کچھ کیا ہو, اب دل کے کانوں سے ذرا ایک بات سن لے. داتا صاحب نقل کرتے ہیں, جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں, عبد الرحمن جامی نے بھی لکھا ہے, اور بھی بہت سارے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے. میں کئی بزرگوں کے قلم کا نچوڑ آپ کی خدمت میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں. اگر انسان اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے, جو بات داتا صاحب کی پیش کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد, اگر انسان سچی توبہ کر لے, رب کی بارگاہ میں معافی طلب کر لے, تو اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے, توبہ کرنے والوں کے لیے خزانے کھول دیتا ہے, توبہ کرنے والوں کے لیے لوگوں کے دل میں محبت انڈیل دیتا ہے, توبہ کرنے والوں کو اپنا مقبول بندہ بنا لیتا ہے. بڑی بات تو یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو زمین گناہ پہ گواہ ہو جاتی ہے, فرشتے گناہ پہ گواہ ہو جاتے ہیں, لیکن جب بندہ توبہ کرتا ہے تو یہ سچی توبہ کی برکت ہے. گناہ کو جو زمین نے دیکھا ہے, اللہ زمین کو بھی بھلا دیتا ہے, فرشتوں کو بھی بھلا دیتا ہے, اور جن لوگوں نے ان کے گناہ کو دیکھا ہے اللہ ان کی نظروں سے بھی گناہوں کو بھلا دیتا ہے, ان کے دماغ سے بھی گناہوں کو بھلا دیتا ہے, ان کے دل سے بھی گناہوں کو بھلا دیتا ہے. بس شرط یہ ہے کوئی سچی توبہ کرنے والا ہو. آؤ آؤ, ہم نے جو کچھ کیا, آج ہر مسلم نوجوان بے چین بے قرار ہے, سب کا ایک ہی مسئلہ ہے, ہم خوش کیوں نہیں ہیں؟ خوشیاں چاہتے ہو, اللہ کو راضی کرو, اس کو خوش کرو, اس کے محبوب کو خوش کرو, اللہ تمہیں خوشیاں عطا فرمائے. ہر خوشی نصیب ہوگی اللہ اس کے رسول کی خوشی کے بعد, ان کی رضا کے بعد دنیا کی ہر نعمت ملے گی. دیکھو انسان کتنا بھی پاپی ہو, اگر وہ صدق دل سے اللہ کی طرف پلٹے اور رب کی بارگاہ کے اندر رجوع ہو اور توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت معاف کرتا ہے. ایک بزرگ نے بطور تمثیل پیش کیا ہے, کیا کہتے سنیں, کہتے کوئی بندہ اپنی ماں کی بے ادبی کر کے بھاگے, اپنی ماں کی بے ادبی کر کے بھاگے, اور 40 سال کے بعد آ کر دروازے پہ کھڑا ہو کے آواز لگائے ماں, تو بولو کیا ماں کو اس کی بے ادبیاں یاد رہے گی یا ممتا مچل کر کے سینے سے لگا لے گی؟ بلا تمثیل جب کوئی بندہ میرے اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور پھر وہ سچی توبہ کر کے کہتے ہیں اللہ, تو خدا کی رحمتیں اس کو اپنے قریب کر لیتے, دامن میں سمیٹ لیتی, اپنی آغوش رحمت میں جگہ دیتی ہے. آؤ ہم اپنے اللہ کو منائیں. ہم نے سب کی خوشی کا خیال کیا, اللہ اس کے رسول کی خوشی کا خیال نہیں کیا. باپ دیکھ رہا ہوتا ہے تو ہم سگریٹ بھی نہیں پیتے, اللہ دیکھ رہا ہے اور ہم شراب پی رہے ہیں. دوست دیکھ رہا ہوتا ہے, مسجد کا امام دیکھ رہا ہوتا ہے تو ہم کسی لڑکی پہ بد نظری نہیں کرتے, اللہ دیکھ رہا ہے اور ہم زنا کر رہے ہیں. جو قوم اپنے اللہ کی قدر نہ کرے وہ قوم قابل قدر کیسے ہو سکتی ہے؟ جو قوم رب کا ادب اور احترام نہ کرے وہ قوم احترام کے قابل کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس سلسلے میں ایک بات جو یاد آئی, داتا صاحب نے جو لکھا اور بزرگوں نے, کہ ایک جوان تھا, ایک جوان, اس جوان کا نام تھا حبیب. حبیب ایسا جوان تھا کہ دولت کی ہوس نے
उसको सूद का कारोबार करने के लिए मजबूर कर दिया था। हवस दौलत बड़ी बदतरीन चीज है। इक्तिदार और दौलत की हवस इंसान को यजीद बना देती है। इक्तिदार और दौलत की हवस इंसान को फिरौन बना देती है। इक्तिदार और दौलत की हवस इंसान को शद्दाद और बुख्त नसर तक बना देती है। अल्लाह दौलत दे मगर दौलत की हवस न दे, अल्लाह इक्तिदार दे लेकिन इक्तिदार की हवस न दे। ये हवस बड़ी बदतरीन चीज है। उसको दौलत की हवस थी, हबीब को दौलत की हवस ने सूद का कारोबार करने के लिए मजबूर कर दिया। वो सूदी ब्याज का कारोबार करता था, और जो लोग सूद और ब्याज का कारोबार करते हैं इतने बेमुरव्वत हो जाते हैं कि उनको किसी से मोहब्बत तक नहीं होती। और मुसलमान का बच्चा बच्चा जानता है कि सूद कितनी बड़ी लानत है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने सूद का एक लुकमा खाया गोया उसने अपनी मां के साथ 36 मरतबा जिना किया। 36 मरतबा मां के साथ जिना, सिर्फ सूद का एक लुकमा। आज बड़ी बड़ी दाढ़ियां, खूबसूरत टोपियां, सफेद लिबास, बड़े बड़े टाइटल और अलकाबात, और कहो कि क्या हो रहा है तो चोरी चुपके सूदी कारोबार भी हो रहा है। कहा मौलाना सब चलता है, सब नहीं चलता। सब नहीं चलता इसीलिए तो इस्लाम आया है। इस्लाम की आमद से पहले सब चल रहा था। इस सब नहीं चलता तभी तो खातिमुल अंबिया को भेजा। सब नहीं चलता तभी तो ताइफ की वादियों में पत्थर खाए। सब नहीं चलता तभी तो ओहद में तंतार शहीद करवाए। सब नहीं चलता इसीलिए तो मक्का छोड़कर मदीना हिजरत की, ताकि अल्लाह के रसूल बता दे पत्थर खाना चलता है, तंतार शहीद करवाना चलता है, वतन छोड़ना चलता है, मगर सब नहीं चलता। चलती एक ही चीज है जिसे अल्लाह का कानून कहते हैं। खुदा के कानून के सिवा कुछ नहीं चलता। ये जो फिक्र है कि सब चलता है, ये काफिरों की बोली है, ये मोमिन की बोली नहीं हो सकती। सिर्फ अल्लाह का कानून चलता है, ये मोमिन की बोली है। कौन कहता है सब चलता है? अगर सब चलता तो सब चल ही रहा था, सब चल ही रहा था। सबको खत्म करके आया। इन्ना दीन इंदल्लाहि इस्लाम, अल्लाह के नजदीक सिर्फ इस्लाम दीन है। वल हाफिज़ून लिहुदूदिल्लाह, जो अल्लाह की हदों की हिफाजत करते। वबश्शिरिल मोमिनीन, उन मोमिनों को जन्नत की बशारत है, उन मोमिनों को खुशियों की बशारत है। तो बहरहाल अर्ज कर रहा था कि उस हबीब नामी शख्स ने सूदी कारोबार शुरू किया। वो लोगों को सूद से पैसे देता, लेकिन इतना बेमुरव्वत था वो कि जिस वक्त वो किसी के दरवाजे पे जाकर के खड़ा होता तो उससे लिए बगैर टलता नहीं था, हटता नहीं था। एक दिन किसी गरीब की चौखट पे पहुंचा। जाहिर सी बात है अक्सर मजबूर होकर के लोग सूद लेते हैं, लेकिन उसकी इस्लाम ने इजाजत नहीं दी है। मजबूरी काहे की? खाने के लिए सूद लेते हो क्या फाका नबी की सुन्नत नहीं? बेटी की शादी के लिए सूद लेते हो, क्या जरूरत है एक शादी में 5 डिश पकाने की? बगैर खाने के भी तो बेटी को रुखसत किया जा सकता है। खूबसूरत लिबास शोरूम से खरीदने के लिए सूद लेते हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि नबी ने अपनी बेटी को शादी के दिन जो चादर उड़ाई थी उस चादर के अंदर भी कई पेवन मौजूद थे। जब पेवन वाली चादर नबी अपनी बेटी को उड़ा के रुखसत कर सकते हैं तो हल्का सा दुपट्टा हम भी तो उड़ा के रुखसत कर सकते हैं। नबी के नाम पे जान देने की बात करने वाली कौम आखिर नबी के किरदार पे अमल कब करेगी? कहा नहीं वो इज्जत के लिए, नाक के लिए। अरे नादान, इबादत करके अगर कोई तारीफ मकसूद रखे तो उसकी इबादत भी गुनाह में शामिल होती है। तारीफ की खातिर इबादत करना भी जहन्नम में ले जाता है। अगर इबादत तारीफ के लिए, तारीफ की लालच से की जाए तो वो इबादत जहन्नम में ले जाएगी। अगर गुनाह तारीफ के लिए करे तो वो गुनाह कहां ले जाएगा? आप कहते हैं कि बस समाज में नाक बचाने के लिए कि देखो उसने अपनी बेटी की शादी कैसे की, चाहे सूद से पैसा लेना पड़े। ये झूठी शान खत्म करो। बंदा किसी को इज्जत नहीं दे सकता, इसलिए कि मालिक इज्जत सिर्फ मेरा अल्लाह फरमाता है वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिल मुमिनीन। अल्लाह के लिए इज्जत है, रसूल के लिए इज्जत है, मोमिनीन के लिए इज्जत है। वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यालमून, और मुनाफिक इसको नहीं जानते। अरे दुनिया क्या इज्जत देगी जो खुद इज्जत वाली नहीं, वो तुम्हें इज्जत क्या देगी? मेरा अल्लाह इज्जत देगा। और जब खुदा इज्जत देता है तो जमीन के ऊपर रहो तो भी इज्जत मिलती है, जमीन के अंदर जाओ तो भी इज्जत मिलती है। और मेरे इमाम पुकार उठते हैं, नकीरैन करते हैं, ताज़ीम मेरी फिदा होके तुझ पे ये इज्जत मिली है। इज्जत
अल्लाह रसूल की चौखट से मिलती है। मजबूरियों का नाम देकर सूद को आम मत करो, मजबूरियों का नाम देकर के हराम को फरोग मत दो, वरना कुदरत तुमसे इज्जत छीन लेगी, नेमतें छीन लेगी, बरकतें छीन लेगी। उस जवान ने सूदी कारोबार शुरू किया और फिर जब वो उस वक्त तक टलता नहीं था जब तक के लोगों से वो वसूल नहीं कर लेता, और उसका कारोबार बड़े शबाब पर था। थोड़े ही दिन में उसका माल बहुत बढ़ गया। याद रखना, अल्लाह फरमाता है हम सूद को हलाक करेंगे और तिजारत को बढ़ाएंगे। सूद कितना भी बड़ा कारोबार हो जाए, एक दिन वो तबाह होकर के रहता है, एक दिन वो बर्बाद होकर के रहता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हम भी शॉर्टकट में बहुत मालदार बनने के चक्कर में कभी इस कंपनी से जुड़ गए, कभी उस कंपनी से जुड़ गए, कभी उस कंपनी से जुड़ गए। कितना मिल रहा है महीने का? इतने हजार, उतने हजार। तशहीर करते फिरते मुझे तो इतना मिला, मुझे तो इतना मिला। फिर नतीजा ये होता है वो कंपनी बंद हो जाती है, लोग भाग जाते हैं। शॉर्टकट में मालदार बनने की कोशिश मत करो, हलाल की तरफ तवज्जो दो। और अगर कहीं जुड़ना है तो उससे पहले उलमा से मशवरा करो, उससे पहले मुफ्तियान किराम और फुकहा से मशवरा करो, और वो भी वो नहीं जिनके पास सिर्फ टाइटल है, बल्कि उनसे मशवरा करो जिनके लिए कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक अल्लाह से डरने वाले अल्लाह के बंदों में अहले इल्म है, जिनके दिल खशियत रब्बानी के गंजीने हो। अहले रुखसत से नहीं, अहले अजीमत से पूछो, गाफिलों से नहीं, खशियत रब्बानी का गंजीना जिनके कुलूब अज़हान हो चुके उनसे पूछो। इसलिए कि कुरान हर एक से पूछने की इजाजत नहीं देता। कुरान कहता है फस्सलू अहल ज़िक्र, जिक्र वालों से पूछो। ये जिक्र वाले कौन हैं? उठते हैं तो खुदा की याद में, बैठते हैं तो खुदा की याद में, लेटते हैं तो भी उनकी शान ये होती है अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, वो उठते बैठते लेटते हुए भी करवटों पर अल्लाह को याद करते हैं, वो अहले जिक्र हैं। उनसे पूछो, वो बताएंगे, हर ऐरा गहरा नहीं बताएगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, तो एक दिन हबीब की हालत ये थी कि वो सूद का भत्ता वसूल करने के लिए गया, और जैसे ही वो अपने घर से निकला, वो माहौल भी कितना हसीन था कि छोटे छोटे बच्चे भी सूद से नफरत करते थे। बच्चों खेलते, बच्चों ने कहा हटो हटो, हबीब आता है। उसके पैरों का गर्द और गुबार खुदा की नाराजगी का सबब न बन जाए, दूर हट जाओ। कहते हैं कि जब कुदरत किसी को राह देना चाहती है तो फिर वो किसी खतीब और अदीब का मोहताज नहीं होता, कुदरत उसके लिए फिर बच्चों से भी रास्ते पैदा कर दे। बल्कि हमने तो अपने बुजुर्गों से यहां तक सुना है, अगर कुदरत किसी को अपनी तरफ राह देना चाहे तो आलाते गुनाह भी उसको वास करने लगते हैं। वाइज ये ना सोचे कि मेरी वजह से इनकलाब है, कुदरत जिसे अपनी तरफ बुलाना चाहती है गुनाह के आलात भी वास करने लगते हैं। कि आपने नहीं सुना, हजरत मालिक इब्ने दीनार एक गवैया थे, फन मौसीकी के माहिर थे हजरत मालिक इब्ने दीनार। खुद कहते हैं कि एक बार मुजरे की महफिल में ढोलक बजाने गया, म्यूजिक बजाने गया, तबला बजाने। सारी महफिल खत्म हो गई तो लोग लौट गए, अपनी पार्टी के लोगों को लेकर मैं कमरे में लेटा, सब सो गए, मुझे नींद नहीं आई। मैं करवट बदल रहा था तो मेरे तबले से आवाज आई, मालिक क्या वो दिन नहीं आया कि तू पलट कर खुदा की तरफ आए? तबला बोल रहा है, तबला नसीहत कर रहा है। इसीलिए तो कुदरत को देने के बड़े अंदाज आते हैं, उसे नवाजने के बड़े अंदाज आते हैं। अल्लाह अकबर। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, नन्हे से बच्चों की ये नाजुक से जुमले दिल पर असर कर गए। लेकिन कहते हैं कि जब जख्म शदीद हो तो बहुत जल्दी नहीं भरता, जब सख्ती दिल पे ज्यादा हो तो बहुत जल्दी असर नहीं करती। फिर क्या था, वो आगे बढ़ा हबीब, और हबीब ने जो है दरवाजे पे खड़े होकर कहा कि लाओ मेरा हफ्ता दो। अंदर से आवाज आई, हबीब मेरे शौहर तेरे लिए पैसों का इंतजाम करने गए, अभी जाओ बाद में पहुंचा देंगे। उसने चिल्ला के कहा तुम्हें पता नहीं जहां जाता हूं खाली नहीं लौटता, या तो दो मुझे, या मैं चिल्ला करके तुम्हारा पर्दा फाश कर दूं कि तुमने मुझसे कर्ज सूद पे लिया है, मुआशरे में जलील हो जाओगे। तो उस खातून ने कहा मेरे शौहर तो घर में है नहीं, कई दिन से फाका कशी है घर में, हमने कर्ज के तौर पे बकरी का सर और बकरी के पैर मांग करके लाए थे, बस अगर तुम चाहते हो तो ये ले जाओ, फिर पैसे भी पहुंचा देंगे। उसने कहा तेरे बच्चे भूखे रहें या मर जाएं मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, मैंने तो कुछ ना कुछ लेकर के जाना है। उसके बाद जो है वो हबीब के दामन में बकरी का सर और पहिए डाल दिए गए और वो ले करके घर पहुंचा। और पहुंचने के बाद बीवी से कहा बहुत भूख लगी, अच्छे से पकाओ। जब पाए और सर बकरी के पकने लगे तो खुशबू उठी, दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खोला गया तो एक दरवेश मर्द दरवेश
कहता है क्या खुशबू आ रही है तेरे घर के खाने की, जरा कुछ मुझे खिला सकता है? हबीब ने बेमुरव्वती से कहा यार अगर मैं तुझे इसे खिला दूं तो तू मालदार नहीं होगा, अलबत्ता बकरी के पाए और सर जो मैं खुद सूद में वसूल करके लाया हूं, अगर मैं तुझे दे दूंगा तो मैं गरीब हो जाऊंगा, चल जा यहां से, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। कहते हैं कि हर फकीर मांगने नहीं आता, कोई दरवाजे पे देने भी आता है। फिर क्या था, जाते जाते उस फकीर ने कह दिया हबीब वो दिन बहुत करीब है जब कुदरत की अदालत में कटहरे में हर शख्स को खड़ा किया जाएगा और अल्लाह उसके अमाल के बारे में पूछेगा। उस दिन कोई किसी का मददगार ना होगा। याद रख आज पलट वरना कल पलटने का मौका नहीं मिलेगा। और फिर वो बंदा चला तो गया, उसके जुमले ज़हनो दिमाग में घूमते रहे। भूख की शिद्दत से बीवी से कहा लाओ दस्तरखान पे खाना रखो। जैसे ही हांडी से जो है वो ढक्कन हटाया तो क्या देखा कि वो पूरा खाना खून में तब्दील हो चुका है, पूरा खाना खून बन चुका है। अब हबीब की आंखें खुल गई, एक तो बच्चों का वो ताना, दूसरा फकीर की नसीहत, तीसरा हांडी का खून बन जाना। हबीब ने सोचा अब जिंदगी बदलना चाहिए, अब जिंदगी में तब्दीली आना चाहिए, अब जिंदगी के अंदर इनकलाब आना चाहिए, अब गुनाहों से रिश्ता तोड़कर मौला से रिश्ता जोड़ना चाहिए, अब बुराइयों से रिश्ता तोड़कर नेकियों से रिश्ता जोड़ना चाहिए। फिर क्या था, हबीब ने सोचा चलो तौबा करते हैं, लेकिन फिर सोचा तौबा किसी अल्लाह वाले के हाथ पर करेंगे, किसी अल्लाह के बरगजीदा बंदे के हाथ पे करेंगे। फिर क्या था, हबीब उन दिनों बसरा की जमीन पे रहता था, उसने सोचा कि जाए कहां। उसकी खुशनसीबी थी कि उन दिनों जमीन के ऊपर हजरत हसन बसरी जैसी हस्ती मौजूद थी जो मौला अली के मुरीद भी थे, खलीफा भी थे, हुजूर के रजाई बेटे भी थे, उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा का दूध पिया था। जब हसन बसरी की खानकाह में कदम रखा, हजरत इमाम हसन बसरी लोगों को नसीहत और वाज कर रहे थे, लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, तौबा करो, खुदा के करीब हो जाओ। कितने भी पापी हो अगर तौबा करोगे तो माफ कर दिए जाएंगे, कितने भी बड़े मुजरिम हो अगर तौबा करोगे तो माफ कर दिए जाओगे। अरे जब वो मुशरिकीन को तौबा के बाद बख्श देता है, कलमा पढ़ने के बाद बख्श देता है, काफिर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए वो बख्श देता है, अगर तुम तौबा करोगे तो बख्श दिए जाओगे। तेवर ये था कि कहते कहते आवाज निकली, अगर आज के दिन हबीब सूदखोर भी तौबा कर ले तो अल्लाह उसके पाप नहीं देखेगा, अल्लाह उसको भी बख्श देगा। कहते हैं कि वो महफिल के किनारे खड़े खड़े थे, वो करीब आए, कहा हजरत एक बार ये जुमला और कह दे, कहा आज की तारीख में अगर हबीब सूदखोर भी सच्ची तौबा कर ले अल्लाह उसको भी माफ कर देगा। फिर उसके बाद एक करीब आकर कहते हैं हुजूर एक मर्तबा ये जुमला और कह दे कि अल्लाह अकबर। हसन बसरी ने कहा अगर आज की तारीख में हबीब सूदखोर भी सच्ची तौबा कर ले तो मेरा अल्लाह उसको भी माफ कर देगा। बस इतना कहना था। हबीब ने हसन बसरी के कदम पकड़ लिए और कहते हैं अगर हबीब की तौबा कबूल है तो आप गवाह रहे कि हबीब अपने सारे गुनाहों से तौबा कर चुका है। और फिर इमाम हसन बसरी ने कहा हबीब कौन? कहा मैं ही तो हबीब हूं। का जिसका याद है पैसे लौटा दूंगा, जिसका याद नहीं सारा माल आज से अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया है। इमाम हसन बसरी ने मुरीद किया, घर की तरफ चले। आज दिल को बहुत सुकून था, इसलिए कि दिलों का सुकून पैसों के बल पे नहीं खरीदा जा सकता, बल्कि खुदा की रजा की वजह से दिलों को सुकून मिलता है, अल्लाह के जिक्र की वजह से दिलों को सुकून मिलता है। हबीब घर की तरफ जा रहे थे अब तौबा करके। अभी भी बच्चे खेल रहे थे, बच्चे कहते हटो हटो, हबीब अल्लाह का हबीब बन करके आ रहा है। आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। लोग कहते सोशल मीडिया से इज्जत मिलती है, अखबारों में तस्वीर छपाने से इज्जत मिलती है। उस वक्त कौन सा सोशल मीडिया था? ये तौबा हबीब की खबर किसने अखबार में छाप दी थी? पता चला बाजारी इज्जतें मीडिया से मिल सकती है, लेकिन नेकियों की वजह से कल्बों की इज्जत अल्लाह पा फरमाता है। नन्हे से बच्चों ने कहा हटो हटो हटो, हबीब अल्लाह का हबीब बनकर आ रहे। आंखों में आंसू। मौला इतना बागी था, तौबा क्या कर ली कि बच्चे बच्चे के दिल में मोहब्बत तूने पैदा कर दी। और फिर वो हबीब जब सच्ची तौबा कर चुके तो मर्तबा ये पाया कि उसी हबीब को दुनिया हबीब अजमी के नाम से जानती है। और इमाम हसन बसरी जैसी जात कहती है कि क़यामत में अल्लाह अगर मुझसे पूछेगा कि तू दुनिया से मेरे लिए क्या लाया है तो मैं हबीब अजमी को पेश करूं। तौबा हसन बसरी के हाथ पे की, लेकिन हबीब अजमी का मकाम क्या हो गया सुनिए और हैरान हैरान रह जाइए कि कुदरत जब नवाजती तो किस शान से नवाजती। एक मर्तबा इमाम हसन बसरी हबीब अजमी से मिलने के लिए आए,
ध्यान देना, मिलने के लिए आए, मगरिब की नमाज हो रही थी, हबीब अजमी नमाज पढ़ा रहे थे। हसन बसरी ने सोचा पहले के मामलात तो बड़े अलग थे, तौबा कर ली अगरचे, और फिर कुरान हबीब उस शान से नहीं पढ़ते जैसे अरबियों का लहजा है, कुरान हबीब उस शान से नहीं पढ़ते जैसे अरबियों का लहजा है। अल्लाह अकबर। तो हसन बसरी, इमाम हसन बसरी ने अपनी अलग नमाज पढ़ी, और जब अपनी अलग नमाज पढ़ी उस रात सोए तो ख्वाब में क्या देखते हैं कि अल्लाह का दीदार नसीब हुआ। इमाम हसन बसरी ने अल्लाह को ख्वाब में देखा, बहुत सी बातें की, तो कहने लगी अल्लाह अब तो तमन्ना बस एक ही है कि तू राजी हो जाए, मैं तुझे राजी करना चाहता हूं और तेरी रजा चाहता हूं। अल्लाह की तरफ से जवाब आया, हसन हमने तो तुम्हें मौका दिया था राजी हो जाने का, हमने तो राजी हो जाने का मौका दिया था, तुमने उससे फायदा नहीं उठाया। हसन बसरी तड़प कर कहते हैं कब मौका दिया था? का आज ही तो मगरिब में मौका दिया था, अगर तू हबीब के पीछे मगरिब पढ़ लेता तो मैं तुझसे राजी हो जाता और तेरी सारी जिंदगी की इबादत को शर्फ कबूलियत अता कर दिया जाता। अर्ज किया मौला वो तो इस शान से नहीं पढ़ता जैसे अरबों का लहजा है, तो जवाब मिला और अपनी जबान सवार कराते हैं और हबीब अपना सौरा हुआ दिल लेकर के आता है। देखा आपने, सच्ची तौबा के बाद ये शान हुई। तौबा कराने वाले हसन बसरी से कहा जा रहा है कि उनके पीछे नमाज पढ़ते तो हम तुझे रजा का मुजदा अता करते। इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह उनसे नाराज था, इसलिए कि रजा के भी कई दर्जे हैं जिसका तस्करा यहां नहीं हो सकता, ये टाइम भी नहीं है। तो याद रखना, फिर इतने मुत्तकी हुए हसन बसरी, इतने मुत्तकी हुए हबीब अजमी कि अल्लाह अकबर, एक कनीज 25 साल तक घर में रही, उसको कहते हैं जरा बेटा फुला कनीज को बुलाना, तो वास्ते कहती वो मैं ही तो हूं, आप मुझे पहचानते नहीं, 25 साल से आपके घर में मुझे पहचानते नहीं। फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम मैंने तुझे कभी नजर भर के देखा भी नहीं। ये तकवे का हाल हुआ। तो सच्ची तौबा इंसान को इस मंजिल पर पहुंचाती है। आओ आज से पहले अगर कुछ भी हुआ हो तौबा कर ले, तौबा का दरवाजा खुला है, अल्लाह से सुलह कर ले, वो सुलह करने के लिए तैयार है। बल्कि मेरे आका की हदीस तो यहां तक है, शाम को कुदरत वाले हाथ अल्लाह फैला करके कहता है दिन भर के पापी आ तौबा कर ताकि मैं तेरे दिन के गुनाह माफ कर दूं। रात के आखिरी पैर में कुदरत की रहमतें हाथ पसार कर कहती आ जा मेरी रहमत के अंदर, चादरे रहमत में आ जाओ, रात के पापियों रात के आखिरी हिस्से में तौबा कर लो, हम तुम्हें माफ कर देंगे। लेकिन इतनी तौबा की दावत कुदरत की तरफ से दी जाती है, हम सब की दावत पे लब्बैक कहते हैं, रब की दावत पे लब्बैक नहीं कहते। लेकिन जिस दिन मौत की ये लटकती हुई तलवार रूह और जिस्म के रिश्ते को खत्म कर देगी, फिर तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। सूरज मगरिब से जब निकलेगा तब निकलेगा, तब तो दरवाजा सबके लिए बंद होगा। लेकिन जब मौत आती है तो भी दरवाजा बंद हो जाता है। मरने के बाद अब किसी की तौबा मोतबर नहीं है और मौत का कोई भरोसा नहीं, कब मौत आई नहीं कह सकते। इसलिए तौबा करते रहो, बार बार करते रहो। लेकिन एक आखिरी में बात यह भी अर्ज कर दूं, हजरत मालिक इब्ने दीनार कहते हैं कि हदीस पाक है जब बंदा तौबा करता है अल्लाह माफ करता है, फिर गुनाह करता है तौबा करता है अल्लाह माफ करता है, फिर गुनाह करता है तौबा करता है अल्लाह माफ करता है, फिर बंदा तौबा तोड़ देता है तो अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे मेरे साथ मजाक तो मत कर, मेरे साथ मजाक मत कर। और सुन लो, जो अल्लाह की बारगाह में उसकी रहमतों का मजाक उड़ाए उसका अंजाम क्या है। आओ आज इस सुन्नी इज्तिमा में गुरूब आफ्ताब के वक्त इतने उलमा सादात अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे यहाँ मौजूद है। अल्लाह की बारगाह में हम सब अपने तमाम गुनाहों से तौबा करें और आइंदा जिंदगी को इनकलाब की तरफ ले जाएं।